So now the Salesforce layout and records type. So page layout and record types का meaning है guys कि if you remember कि yesterday I'm create a one app and this particular app name is in SBI app. Now inside the app I'm just create some tabs. Got it the point? Now today I'm create inside the sub tabs. Clear the point? So soft tab. That means yeah, like other I'm just click on file, then it's new, open, save as, these all point is coming. Got it the point? Now this is a one kind of parent-child relation. Like a parent, that means this is my parent object, and now this all are the child, and the all child objects are connected with a parent objects. Got it the point, everyone? Like I'm just go to the portal. What happened? Now I'm just go to the portal, and inside the portal, if you remember, and yesterday I'm create a one app is related to SBI Bank, and inside the SBI Bank I'm just create some SBI logins, SBI profile, SBI employee, SBI account, SBI event and contact. Now guys, this is our tab. And what is the record? Record is if I'm just create a new. So you can see the SBI login name. So is a simply is a one thing कि if you can create any objects, कि अगर आप लोग कभी भी कोई भी object create करते हैं, when user create any objects, some fields create automatically. तो guys, आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट मींस कि लाइक हम लोगों ने जब भी ऐप बनाई थी तो दिस SBI login is a backend process is object, front end is a SBI login tab. Got it the point? Yes or no? Yes, sir. Now if you can see, if I'm just click on a new login, then you can see these are the fields. तो यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स आपको विजिबल हो वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट देयर आर सम फील्ड्स क्रिएट ऑटोमेटिकली. यहाँ पर आपकी नेम की जो फील्ड है वो फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होती है, क्रिएट हो जाती है. एंड ऑनर यानी कि इस फील्ड को, इस पर्टिकुलर फील्ड को किसने क्रिएट करा है. तो इफ आई एम जस्ट गो टू द सेटअप ऑप्शन, now I'm click on setup option. Or inside the setup option you can see the object is related to the SBI. So now I'm just click on object manager and then click on SBI. These all are the SBI related. Like I'm just using a SBI login, and you can see the field and relationships. So inside the field and relationship you can see the option is coming create by this, last modification, owner and SBI login name. So these fields are create automatically. तो आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उनकी कुछ डिफॉल्ट फील्ड्स अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें आपका आ जाता है लाइक का क्रिएटेड बाय यूजर, लास्ट मॉडिफाई बाय द यूजर, ओनर इज अ ओनर आईडी. So this is a concept.
नाउ द फील्ड नेम की जो भी आप फील्ड्स के अंदर चाहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पर विजिबल्स हो, तो वो सारे के सारे चीज आपकी यहाँ पर। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फील्ड एड ऑन होती है द एसबीआई लॉगिन नेम, जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? लाइक आई एम जस्ट एडिट कि मैं चाहता हूँ एसबीआई लॉगिन टाइप में यहाँ पे दे देता हूँ, सो आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक एसबीआई लॉगिन टाइप। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अब Sir. सिंपली है कि इफ यू कैन ऐड कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो एसबीआई लॉगिन है, इस लॉगिन के अंदर यहां पर आई लाइक कस्टमर लॉगिन। नाउ इज इट अनदर ऑप्शन इज कमिंग इज लाइक corporate login and is like net banking, so is like stock. So these are the different option is coming कि login के अंदर मेरे पास सब login के options आए। तो now I'm just go to how to create। so इसके लिए आपको दो चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। now कि सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा लेआउट। लेआउट का मतलब है कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एंड देन उसके बाद आपको क्रिएट करने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स। एंड नाउ द ईच लेआउट कनेक्ट विद रिकॉर्ड्स। तो दो तरीके का पैटर्न है कि आपको एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेआउट। एंड ऑब्जेक्ट लेआउट के अंदर क्या होगा कि व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट लेआउट, से हो सकता है कि हर उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स भी हो। अभी तो हमारे पास सिर्फ ओनली सिंगल फील्ड विजिबल हो रही है ना, यस और नो? तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड है रिकॉर्ड लाइक अ सबटाइटल। so now how to create these two things in for existing। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक तो यहाँ पर एसबीआई लॉगिन टैब है और एक मेरे पास यहाँ पर एसबीआई एम्प्लॉय है। so now I'm just come to the login tabs and create inside the layout settings। so it's simply I'm just go to the portal and click on subject and then click on object manager। यानी कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको लेआउट करना है, so you can search a object। I'm search like in SBI, and after searching the SBI you can see that I'm just come to the login options and click on this object, or inside the object you can see the page layout। in a field options I'm start field options in a Monday because is 2 or 3 classes is required back to back, so that's why I'm start today this topic। got it the point? so now I'm just click on a page layout and I'm create a new, like new page is related to पेरेंट फील्ड। यानी कि एग्जिस्टिंग पेज लेआउट का मतलब आप किसके अंदर ये चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं। सो नाउ द माय पेरेंट फील्ड इज माय पेरेंट ऑब्जेक्ट इज एसबीआई लॉगिन, और इनसाइड द एसबीआई लॉगिन आई एम जस्ट टाइप लाइक customer login। now click on save and it show the layout कि लाइक अगर आपके पास कोई फील्ड्स बनी हुई हो तो वो फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यू कैन सी कि ओनली दिस 4 फील्ड इज क्रिएटेड। एसबीआई लॉगिन नेम, ओके, तो लॉगिन नेम आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, ऑनर्स वगैरह किसने क्रिएट करा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव। देन सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट अगेन क्लिक ऑन न्यू। एट दिस टाइम यूजिंग लाइक क्रिएट। अब आपके पास आ रहा है कि अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब आप कस्टमर लॉगिन के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं या SBI login layout पे। so now I mean click on SBI login, I'm just give the like corporate LOGIN login and now click on save, and now I'm just using like again click on save, and now I'm just create a one more new, is it look like stock login, or I'm not, I'm just using a NET BANKING net banking,
login. And now the parent field is SBI. अगर आप और भी क्रिएट करना चाहते हैं इन डिफरेंट वेज, तो डिफरेंट वेज भी है, लाइक यू कैन अगेन क्लिक ऑन न्यू and now you can select a key like a net banking or customer login or corporate login or like is like a STOCK stock market and जो भी स्टॉक मार्केट्स की फील्ड्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो फील्ड्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन सेव. गॉट इट दिस पॉइंट. तो यहाँ पर गाइस ये मैंने पेज लेआउट दिया, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ रिकॉर्ड टाइप. रिकॉर्ड टाइप मतलब है वन काइंड ऑफ एक्सेस परमिशन. So now click on new, and if I'm just click on new, then first a master. तो यहाँ पर master क्या है, SBI login. So SBI login is a master. Inside the SBI login, I'm create a record type. So I'm just create a record is look like तो यहाँ पे I'm just create a new record is like first हम मैंने लिखा था customer login. And now it's visible to all profiles. So now guys, I'm asking not. It's not visible to all profile. It's visible to TL profiles and system administrators only. Got it the point everyone? These settings कि जो रिकॉर्ड टाइप बना रहे हैं वो किसको विजिबल हो. तो हम स्पेसिफिक यूजर्स तो मैं सभी को तो अलाउड करना नहीं चाहता. नेक्स्ट is look like is visible to all और यहाँ पर all हमने select कर लिया है. for select tab is which one is it a corporate login. so जो हमने अपना लेआउट बनाया था उसके लिए. so कहाँ पर जाके अटैच हो, पर्टिकुलर ये जो मैपिंग हो रही है ये रिकॉर्ड ये किसके साथ हो रही है, कॉर्पोरेट लॉगिन के साथ. बट हमने कॉर्पोरेट लॉगिन का ही आई थिंक सो बनाया था पहले रिकॉर्ड टाइप्स या तो सॉरी कस्टमर. सो आई एम जस्ट यूजिंग अ कस्टमर लॉगिन. तो ये मेरे को मैपिंग करनी है अपने लेआउट को अपने रिकॉर्ड के साथ. देन सेव एंड न्यू. नाउ आई क्रिएट अनदर रिकॉर्ड टाइप. सो I'm just again click on record types and then click on another record types is like corporate hyphen login. And is it active and now is visible to in a particular profile. So I'm just select these three, system, TLs and sales. So by default already there. So इसके लिए भी मैं select कर रहा हूँ. Next, now corporate login and now save and new. Now I'm create one more thing is net banking. So I'm just click on गाइस. ये पता है ना टीएल प्रोफाइल्स और सिस्टम एडमिन प्रोफाइल्स कहां से आई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इंटरकनेक्ट होती जा रही हैं चीजें हमारी. एज वेल एज मेक अ डिफॉल्ट. सो आप मेक अ डिफॉल्ट करना चाहते हैं इनको तो कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर ले एंड नाउ सेलेक्ट नेट बैंकिंग लॉगिन. सो सेव एंड न्यू. एंड वन मोर थिंग इज स्टॉक. After that, I'm just click on a stock. And now save it.
नाउ गाइस आई एम क्रिएटेड टू थिंग्स। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपकी किस तरीके से मैपिंग हुई है, तो just simply you can just click on a page layout. Inside the page layout, I'm just create a 1 2 3 4 page layout and you can see the page layout assignment. So you can see कि अगर आपको कोई changes करनी है या कोई editing करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि like the it's visible to which profiles. तो यहाँ पे आ रहा है look like in master, SBI login है, corporate login, customer login, net banking login और दिस इज अ मेल। बट यहाँ पे देखिए आपको एक चीज नहीं दिख रही है, स्टॉक मार्केट। इफ आई जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट, दिस विजिबल द स्टॉक मार्केट। तो गाइज यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना भी एड ऑन करना चाहते हैं अपना कर सकते हैं। नाउ इफ यू कैन सी द ऐप, अब हम जस्ट क्लिक ऑन अ रिफ्रेश and then click on login options, click on new SBI logins, it show the all options. Got it the point? Right, sir. Everyone, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को चलते रह सकते हो, उसी से रिलेटेड फिर आगे के पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। फिर से वही है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट पे करे तो वहां पर कौन सी फील्ड आप ऐड ऑन करेंगे, तो इससे रिलेटेड आपका फील्ड और यही आपका पेज लेआउट का ऑप्शन आ जाता है। और बाय डिफॉल्ट आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द बाय डिफॉल्ट वन फील्ड इज क्रिएटेड इज अ नेम एंड ऑनर। क्लियर नायडू, इज इट क्लियर? प्रणीत इज क्लियर? अमिताभ गॉट इट द पॉइंट ऑफ लेआउट? Got it. Layout and Yes, sir. now the another part is ki if you can see there is a one event pattern is also available, and inside the event you can see if I'm just click on new, so like मुझे अपना कोई event create करना है, when we create any event, so guys if I'm just create a event, so inside the event you can see कि सिंपली कि इवेंट क्रिएट करते वक्त मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आ रहा है नेम से रिलेटेड। गॉट इट द पॉइंट? द ऑप्शन इज कमिंग इज रिलेटेड टू नेम, बट अब मैं चाहता हूं कि नेम के अलावा यहाँ पर मेरे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस विजिबल हों। जिस विजिबल हो तो उसी के बेस पर मैं क्या कर सकूं, अपने इवेंट हिस्ट्री को क्रिएट कर सकूं। तो अब इवेंट हिस्ट्री आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड्स, यानी कि यू कैन क्रिएट अ फील्ड। आप अपने इवेंट के अंदर आप कौन कौन सी फील्ड्स को ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट ऐड वन और टू। बट उससे पहले आप देखिए यहाँ पर कि इसके अलावा इवेंट के अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, और इफ यू रिमेंबर कि जब मैंने एक एम्प्लॉय फील्ड क्रिएट करी थी, यानी कि आई एम जस्ट क्रिएट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो मैंने वहां पर ऑप्शन लिया था नंबर्स का। अगर आप देखना चाहते हैं, आई एम जस्ट क्लिक SBI एम्प्लॉय, सो आई एम जस्ट कम टू द object manager, then click on SBI and SBI employee नाम से मैंने एक फील्ड ली थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था और एडिट। तो क्या देखिए यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करा था ना, वो मैंने सिलेक्ट करा था नंबर, सॉरी SBI एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर SBI एम्प्लॉय नेम आ रहा है, बट नेम की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है। अब टेक्स्ट का मतलब है मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी नेम एड ऑन करते हैं, नेम के बाद यहां पर मैं ऑटो नंबर्स ले रहा हूं कि उसकी एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ द एम्प्लॉय आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली लाइक SBI hyphen EID, the employee ID automatically create हो जाए। the employee ID created is like a 200100। Got it? So मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अब कोई भी है लाइक 200101 102 103, एंड यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे मैंने 6 डिजिट दिए हैं, तो 6 डिजिट की ही यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। सो मैंने यहाँ पे एक एडिटिंग करी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कभी भी किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। नाउ देन गो बैक टू, आई एम जस्ट गो बैक टू द एप्स, and inside the app if you can see I'm just click on a employee and new employee। तो guys देखिए यहाँ पर आपके पास अभी क्या आ रहा है कि एम्प्लॉय नेम की जगह अब क्या आने लग गया है,
आप देख रहे हैं कि मैंने वहां पे आईडी कर दिया है, तो आपके पास नेम ऑप्शंस अब विजिबल नहीं हो रहा है। गॉट इट द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे Yes, sir. देखेंगे तो मैंने वहां पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। नॉर्मली आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव। सेव करिए तो आप देखिए यहाँ पे उसने एम्प्लॉय आईडी मेरे को एक जनरेट कर दी, बट मेरे पास क्या है, नेम की तो फील्ड ही नहीं है ना। यस और नो? इट शो द ओनली एम्प्लॉय आईडी। तो Yes, आप sir. क्या है, आप डिफरेंट तरीके से अपनी क्या क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर द एन नंबर ऑफ फील्ड्स अवेलेबल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? तो आई एम जस्ट गो बैक टू द एसबीआई एम्प्लॉय, और यहाँ पे देखिए यही मेरा रिकॉर्ड है, मुझे नहीं चाहिए रिकॉर्ड, आई एम डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो अगर आप कोई भी कस्टम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं तो आप अपना डिलीट कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू द इवेंट। लाइक अगर मुझे एक छोटा सा कोई इवेंट है और मैं इवेंट का कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक कि मेरा जो पेरेंट टाइप रिलेशनशिप्स है, सो मैं इवेंट्स के अपने रिकॉर्ड्स क्रिएट करना चाहता हूँ। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू द न्यू, sorry, again I'm just go to the objects and search SBI, and inside the SBI you can see event options. If I'm just click कि अगर आपको किसी की भी field create करनी है, so you can click on field and relationship and then click on new field. और then guys, this is the field types. आपको किस चीज से related field create करनी है। Got it the point? Like you can create a field related to date and time. कि मैं चाहता हूं इवेंट नेम आ गया, मैं इवेंट की डेट और टाइम से रिलेटेड मैं फील्ड क्रिएट करना चाहता हूं, सो आई एम जस्ट सिलेक्ट डेट एंड टाइम एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। गिव द फील्ड नेम, लाइक आई एम जस्ट गिव द फील्ड नेम इज स्टार्ट डेट एंड टाइम। मैंने यहां पे लिख दिया स्टार्ट डेट एंड टाइम। अब ऑलवेज का मतलब है, रिक्वायर्ड का मतलब है इट्स अ मैंडेटरी। गॉट इट गाइस? अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ऑलवेज की ये मेरा मैंडेटरी है, यानी कि इसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, इज कंपल्सरी, तो आप यहां पे इसको एड ऑन कर सकते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट्स विजिबल टू ऑल प्रोफाइल्स। नाउ नेक्स्ट एंड सेव। तो गाइस यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे आपको एक फील्ड एड ऑन करी। तो देखिए ये एक फील्ड थी नेम की जो ऑलरेडी विजिबल हो रही थी। Now I'm add up one more field is start date and time. If you can click again back to the app and then you can just click on SBI event options and click on new. So you can see there the two field is coming. Clear guys? Up both are, you can see the star option is available. Like if I'm just give the event name is like a Salesforce workshop. So apply the Salesforce workshop. अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, गिव द मैंडेटरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इट्स अ रिक्वायर्ड फील्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड, दैट मींस अ मैंडेटरी इज रिक्वायर्ड। Now I'm select, I'm just select a particular date is related to, like I'm selecting date of like a 10th of December, and start date or start timing, you can select the timing is in 10 a.m. and now click on save. So this is my one event is explained is created by honor is this, last modification of this, start date of event this, and event name is workshop. Got it the point everyone? How to create a page layout, how to create a field. So मैंने एक आपको short field बताई है. In the next 2 or 3 classes I'm create a multiple fields inside these all tabs. सर Everyone इसको got it the विजिबिलिटी point? Yes, तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें विजिबिलिटी हमें किस किस को दिखानी है? जैसे हम मान लीजिए पूरी एम्प्लॉय लिस्ट जो हमारी है सबको पब्लिश करनी है, ये जो इवेंट हमने डाला है, फील्ड है ना, ये फील्ड आपको विजिबल होगी जिस भी यूजर को आपने ऐड ऑन करा रखी, क्योंकि ये जो है ना, ये टैब्स आप विजिबल कराएंगे तो फील्ड विजिबल होगी।
बोला टैब विजिबल तो उसके अंदर के कंटेंट भी विजिबल होंगे ऐसा? नहीं, कंटेंट विजिबल होंगे ये जरूरी नहीं है, उसके लिए हम हाँ आगे मतलब सिक्योरिटी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक मैं है। नहीं चाहता कि मैंने यहाँ पे लाइका ये, अब क्या है कि लाइका मैं कहता हूँ अमिताभ और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड अब अमिताभ ने इवेंट का टैब बनाया हुआ है, इवेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आपने एक एसबीआई प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि अमिताभ मेरे पास ऑब्जेक्ट, अमिताभ को अब आपको भी इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो नाउ आप अमिताभ से कहेंगे कि अमिताभ कि आपके पास इवेंट ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या? अमिताभ कहेगा यस बना हुआ है। तो अमिताभ अपना ऑब्जेक्ट आपको शेयर कर सकता है, बट अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर, इसकी फील्ड के अंदर ये तो इसके रिकॉर्ड्स है ना। आप चाहते कि मैं ये रिकॉर्ड शेयर नहीं करना चाहता, मैं क्या शेयर करना चाहता हूं? ओनली टैब्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट शेयर करना चाहता हूं, रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए ना आपको, उसका डेटा नहीं चाहिए, जी। आसान। तो आप ये शेयरिंग कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द वन यूजर शेयर ऑन ऑब्जेक्ट टू अनदर यूजर, आप अपना ऑब्जेक्ट किसी भी के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आगे सर शेयरिंग पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सर ये मतलब कॉमन, जैसे मान लीजिए आपकी एक राकेश गौतम नाम से एक आईडी है, मेरे शाह के नाम से एक आईडी है, अमिताभ के नाम से एक आईडी है, रैंडम्स। तो रैंडमली हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिसका हम आईडी डालेंगे, या बाय सिर्फ डिफॉल्ट शेयर है, बाय डिफॉल्ट शेयर। देखिए यहाँ पे सेल्स फोर्स वर्कशॉप है और इट्स विजिबल टू एडमिन यूजर्स है। नाउ आई एम लॉग इन टू अनदर यूजर, क्योंकि ये ऐप ऑलरेडी वहां पे लॉग इन हो रखी है, आपको पता है, इसीलिए मैंने पैरेलली यूजर बनवाया हुआ है एक। अच्छा वो ऐप परमिशंस आपने दे रखी, तो जो उसमें ऐप में होगा वो यहाँ पे भी होगा? बिल्कुल सिंपल सा है ना। देखिए आप जब यूजर को दी थी तब यूजर में टैब के ऑप्शन भी तो आ रहे थे ना। तो नाउ मैं यहाँ पे आई एम जस्ट क्लिक ऑन इवेंट एंड सर्च ऑल, ये आ गया यूजर के पास भी। हाँ जी हाँ जी। आई एम अवेलेबल इन विच यूजर? Gautam Rakesh, but if you can click on this, it's the honor of ICCP Infotech. ये गौतम राकेश ने नहीं बनाया, that means this record created by the other user. Clear? ओके। Now if you can edit, this one is like a workshop in INDIA India. अब आपने इसको क्या करा? एडिट, तो यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट मॉडिफाई बाय राकेश गौतम। अब यहाँ पर अगर आपने एडिट करा है, तो जिसने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो अब उसके पास क्या है? एडमिन क्रिएट दिस। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करके देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को किसी ने चेंज करा है। तो इस लास्ट मॉडिफाई बाय द गौतम राकेश। अब यहाँ पे दो यूजर्स इन्वॉल्व हो गए इस वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर। गॉट इट? वन इज ओनर जिसने ये क्रिएट करा, और सेकंड जिसने इसको एडिट करा। तो ट्रैकिंग भी हो रही है यहाँ पर। जी। गाइस गॉट इट द पॉइंट? अमिताभ? तो सर इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे रिकॉर्ड्स किसी और को विजिबल हो। एडिटिंग ऑप्शन भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम किसी को एडिटिंग राइट नहीं देते? जब विजिबल ही नहीं होगा तो एडिट कहां से होगा? नहीं वो तो विजिबल मैंने हो बट रीड, एडिट ना। मैंने जब ऑब्जेक्ट का वो करा था तो मैंने वहां परमिशन दी थी ना। देखिए यहाँ पर अगर आप जी। जब गो टू द प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल में आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जब हम लोग प्रोफाइल के अंदर गए थे। नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू हियर, आई एम जस्ट गो टू प्रोफाइल, यूजर एंड इनसाइड द यूजर प्रोफाइल। तो वहां पे जब मैंने ऑब्जेक्ट अलाउड करे थे ना, तो देन आई एम अलाउड अ परमिशन। आई एम जस्ट गो टू द टीएल, आई थिंक सो मेरे इस यूजर पे कौन सी कौन सी वाली प्रोफाइल है? फर्स्ट टाइम चेक अ प्रोफाइल, this particular user. I'm just click on a user, and Gautam Rakesh is a TL normal user profile is available right now. I'm just click on a profile and then click on RT4TL and click on TL normal profile. My user using this profile right now. Then click on edit, and inside the edit you can see the custom object is visible. और अभी राकेश एडिट क्यों कर पा रहा है? बिकॉज कि हमने उसको एडिटिंग के राइट्स दे रखे हैं। गॉट इट? राइट सर। अब मैं उसको किस चीज के राइट दे देता हूं? व्यू एंड रीड। राइट। क्लियर? एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोफाइल बताई थी कि आप प्रोफाइल का डेली रूटीन में जब यूज करेंगे ना, डे 1 से, तो यू आर एन एक्सपर्ट।
Got it? Now I'm Yes, just sir. come to here. तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ जी सर. चलिए गुड है. Now again I'm just come कि मैंने अब इसको रीड एक्सेस दे दिया. तो अब देखिए यहाँ पर एक तो न्यू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा. Yes or no? और अब एडिटिंग के भी कोई भी ऑप्शंस नहीं विजिबल हो रहे. Right. But only for this, not for other. अदर में न्यू का आ रहा है. सब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, Thank you sir. guys. Hope so. You are like my videos. Thank you.